میں آج کے درس کے اندر پوری دنیا کے انسانوں کو یہ واشگاف کہنا چاہتا ہوں کہ ہے کسی میں دم تو میری اس بات کو رد کرے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے اور مجھ سے انعام لے جائے۔ نمبر 2، اس بات کو رد کرے کہ جس طریقے پر قرآن حجت ہے اسی طریقے پر نبی کا فرمان بھی حجت ہے۔ یہ دو باتیں۔ الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ النبیین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے انتہائی معزز سامعین، قابل احترام بزرگ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسی جماعت عطا فرمائی جنہوں نے حضور کی باتوں کو، سنت کو نقل کیا، محفوظ کیا۔ میرے دوستو، ہمارا درس یہ چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ایسے حجت ہیں، واجب القبول ہیں، جس طریقے پر قرآن حجت ہے اور واجب القبول ہے۔ اور اس پر قرآن پاک کی آیات میں نے بکثرت پیش کی، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سمجھایا۔ اب ہم صحابہ کی زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ جب کبھی کسی مسئلے کے اندر صحابہ اکرام کو اختلاف ہوا، رائے کا اختلاف ہوا، تو حضرات صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی طرف توجہ کی اور انہیں مکمل طور پر حل مل گیا۔ چنانچہ طبقات ابن سعد اور تاریخ الخلفاء وغیرہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب یہ ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر عبادات کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں ہمارا امام کس کو بنایا، امام ہونا کس کو بننا پسند کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں ہم نے غور کیا تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مل گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں مرض الوفات میں آپ فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو، میں نبی حکم کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمارے اس اپنے معاملے میں یعنی جانشینی کے معاملے میں جب نبی کی یہ حدیث ملی تو ہم نے تمام صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا کہ جو دین کے معاملے میں ہمارا امام ہے، جس کو نبی امام بنے دین کے معاملے میں، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ دنیا کے معاملات میں بھی ہم اسے اپنا امام بنا دیں۔ چنانچہ صحابہ دوڑے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں خلیفہ اول تسلیم کر لیا۔ اس واقعے سے دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ بات نمبر 1، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باجماع امت، باجماع صحابہ کے اجماع، اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نمبر 2، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی رائے کے اندر اختلاف ہوتا، حضرات صحابہ اکرام حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرتے تھے، انہیں حجت جانتے ہوئے مسئلہ اسی حدیث سے نکالتے تھے، ان کے مسائل کا حل مل جاتا تھا۔ واقعہ نمبر 2، اسی طرح یہی واقعہ دوسری کتابوں کے اندر اس طرح بھی لکھا ہے، فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے، صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف بڑھ گیا، یہاں تک کہ انصار والے آئے اور کہنے لگے الامیر الواحد منا والامیر الثانی منکم، ایک امیر ہم میں اور ایک امیر تم میں ہوگا۔ یہ بات بڑھتے بڑھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں صحابہ کرام کی جماعت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کی طرف توجہ کرو، امامت کا موقع ہے، اہم ترین عبادت نماز ہے، اس موقع پر
नबी भी ये पसंद फरमाते हैं कि उम्मत का इमाम अबू बकर हो, और अल्लाह भी ये पसंद फरमाते हैं कि उम्मत का इमाम अबू बकर हो। जब अबू बकर को नबी आगे कर दे इबादत के मामले में, अल्लाह आगे कर दे इबादत के मामले में, तो फिर तुम कैसे पसंद करते हो कि उस अबू बकर से आगे बढ़ो। जब ये बात हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने की ना, तो तमाम अंसार वाले ये कहने लगे, नऊज़ु बिल्लाहि अन नतक़द्दम अबा बकर, हम अल्लाह की पनाह में आते हैं इस बात से कि हम अबू बकर से आगे बढ़ जाएं। वो अबू बकर जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए आगे उम्मत का इमाम खड़ा करें और अल्लाह भी उनके इमाम होने को पसंद करे, हम अंसार वाले पनाह मांगते हैं कि हम उस अबू बकर से आगे बढ़ जाएं। इससे भी दोनों बातें वही साबित हुई। नंबर एक, खलीफा अव्वल बाइजमाए सहाबा अबू बकर सिद्दीक ठहरे, तमाम सहाबा ने इत्तेफाक किया हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और नंबर दो, इस वाक़े में यह साबित हुआ कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम सहाबा इकराम ने जब उनमें राय में इख्तिलाफ हुआ ना, तो उन्होंने हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो दी, हदीस को वाजिबुल कबूल माना, हदीस को हुज्जत मानते हुए हदीस में जब गौर किया ना, तो उनके वाक़े और मसले का हल मिल गया। इसी तरीके पर एक जगह पर इस तरतीब से लिखा है वाक़या, फरमाया कि सहाबा इकराम के दरमियान इख्तिलाफ बढ़ गया, अब किसको अमीर बनाया जाए। अंसार, जिस तरह पहले सुना आपने, अंसार कहते थे हम एक अमीर हो और एक मुहाजिरीन में हो, यहां तक कि सहाबा इकराम इस बात में परेशान होने लगे कि अब फैसला कैसे होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुल मुमिनीन, बाइजमाए उम्मत खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। और मैं क्यों परेशान हो, किसको खलीफा मुकर्रर कर रहे हो। तो इस पर सहाबा इकराम ने अपनी अपनी आरा पेश की, यहां तक कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया था, कुरैशुन वला तुहादिल अम्र, इस अमर के वाली तो कुरैश ही हैं। जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने ये बात इरशाद फरमाई ना, तो सहाबा इकराम फौरन उनके चेहरों पर खुशी के आसार नमूदार हुए। सहाबा इकराम खुश हो गए, फरमाने लगे बस मसले का हल ही मिल गया कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे माँ बाप, हमारी जान, हमारा माल आप पर कुर्बान हो, आपने तो मसले का हल नहीं बता दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताकर फिर सहाबा इकराम फरमाते हम दौड़े, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को हाथ पकड़ा और फरमाया, अबू बकर आप अगर नमाज के मामले में हमारे इमाम बन सकते हैं तो दुनिया के मामलात में आप हमारे इमाम क्यों नहीं बन सकते। सहाबा इकराम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैठ की और उन्हें खलीफा अव्वल तस्लीम किया। एक तो यही बात साबित हुई और दूसरी यही बात साबित हुई कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम सहाबा इकराम ने इस बात को साबित किया कि जब कभी किसी मसले के अंदर इख्तिलाफ राय होता है हमने, तो हम भी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उन्हें हुज्जत जानते हुए, वाजिबुल कबूल जानते हुए उसकी तरफ रुजू करते हैं, मसाइल का हल मिल जाता है। तो मेरे दोस्तों, हदीस के बगैर आप किस तरह कुरान को समझेंगे, हदीस के बगैर आप किस तरह मसाइल का हल ढूंढेंगे। इस वजह से हदीस का इनकार करने की बजाय अपने आप को सुलझाएं, खुदारा इस तरह की बातें करना छोड़ दें, वरना आप दुनिया आखिरत में जलील होंगे। और इसी तरीके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए तो उनमें अहम तरीन मसाइल में से एक वाकया यह पेश आया कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां पर दफन किया जाए। दफन करने के मामले में सहाबा इकराम में यहां भी इख्तिलाफ रह हुआ। तो ऐसे मौके पर खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला आगे बढ़े और फरमाने लगे, मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सुना है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवा जहां पर कब्ज होती है वहीं पर उनकी जाए मदफन होती है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुबारक हुजरे के अंदर इस दुनिया फानी को छोड़कर अल्लाह की तरफ रवाना हुए हैं, दारुल अब्दी की तरफ रवाना हुए, उसी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्द खाक किया जाए। चुनाचे इस वाक़े से भी साबित हुआ कि अगर मसले का हल मिला तो अबू बकर सिद्दीक कुर्बान जाए,
आपके खलीफा होने की बरकत से और आपकी इस गुफ्तगू की बरकत से। और दूसरी बात यह साबित हुई कि साहबों में ये इख्तलाफ भी मिटा तो हदीस में गौर करने की वजह से और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाजिबुल कबूल और हुज्जत मानने की बरकत से मिला। इसी तरीके पर किताबों में लिखा है एक वाकया कि जिस वक्त ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रवाना हो गए, तारीख इस्लाम के अंदर एक वाकया लिखा है। अल्लाह ताला ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ये बात डाली कि कुरान को जो फैला हुआ है मुतफर्रिक जगहों पर बाद सूरतें और बाद आयात बाद साहबा को याद है और बाद सूरतें और बाद आयात बाद साहबा को याद है। इसी तरीके पर कुछ हिस्सा चमड़े के टुकड़े पर लिखा हुआ है, इसी तरीके पर कुछ हिस्सा किसी के पास महफूज है। तो इस तरीके पर ऐसा क्यों ना हो कि हम इन तमाम तर कुरान पाक की सूरतों को, आयात को, जुमलों को, इन तमाम को एक जगह पर जमा करके एक नुस्खा बना दें। इब्तिदा के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ये बात बात आई कि मैं ये काम कैसे करूं, कैफ अफ़अलु शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये काम, अबू बकर फरमाते थे, मैं नहीं कर सकता जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करें। मैं वही काम करूंगा जिसको अल्लाह के नबी अलैहि सलाम करके गए। यहां तक कि अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु शरह सदर फरमा दिया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को शरह सदर हुआ कि बात के अंदर दिमाग कमजोर हो जाएंगे, नबी का जमाना खैर का जमाना था, बात के अंदर इख्तलाफात पैदा होंगे, मुनाफिकीन भी आएंगे, यहां तक कि कुरान के अंदर तब्दीलियां डालना शुरू कर दें। तो फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब तशफ़ी हुई, उन्होंने हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और फरमाया कुरान पाक को लिखना शुरू करो, एक नुस्खा तैयार करना चाहते हैं ताकि लोगों में इख्तलाफ रहे, लोगों में बात के अंदर तफरकाबाजी खत्म हो जाए। जब ये बात ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला को बुलाकर की गई तो हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु इब्तिदान वो भी फरमाने लगे, कैफ़ तफ़अलानि शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम कैसे ऐसा काम करना चाहते हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। यहां तक कि फिर अल्लाह ताला ने हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी तशफ़ी अता फरमाई। उन्हें भी जब तशफ़ी हुई तो ये काम, बेहतरीन काम, कुरान पाक के लिखने का काम अल्लाह ने हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए से कराया। तो हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला ने इस काम को आगे बढ़ाया, लिखा। तो इस वाक़ये के नकल करने से शेख फरमाते हैं मकसद ये कि इससे नुमाया तौर पर जाहिर होता है सहाबा इकराम को हर काम पर इकदाम करने से पहले हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ जुस्तजू होती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ रुजू करते थे, हदीस की तरफ रुजू करते थे, जुस्तजू होती थी।